Islamabad University gold medalist BTech. Hi everyone, so I hope you all are doing well. Welcome to Campus Monk. So today in this video, I am going to share that how you can prepare for the communication assessment of Cognizant, right? Cognizant already काफी सारे colleges में आके on campus hiring ले रही है. It will be very soon off campus. And communication assessment round one of the most important round है. Plus it is also an elimination round. So please इसके लिए एकदम serious होके अच्छे से assessment देना. कम्युनिकेशन असेसमेंट आपकी एआई बेस्ड असेसमेंट होगी, राइट, जिसमें आपको 4 सेक्शंस के बेसिस पे डिवाइड करा जाएगा क्वेश्चन को एंड यू हैव टू आंसर इट. अगर आपको कॉग्निजेंट में कैसे एंटायर हायरिंग प्रोसेस है ये जानना है तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो क्रिएट की थी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नाउ कम्युनिकेशन असेसमेंट में यू हैव टोटल 4 सेक्शंस, रीडिंग एंड ग्रामर, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, राइट. सो इन टोटल ऑफ 4 सेक्शन देयर आर अराउंड 77 क्वेश्चंस, around 77 questions, and you will get 60-minute timer, right. Now if we talk about the first section, that is reading and grammar section. So this section tests your grammar skill, comprehension through reading passages, right. And other than that there is like fill ups things. So just let me give an example. So this is a very small paragraph. There the paragraph length will be larger. So first you have to read the paragraph and answer these MCQ type questions, right. So let's start. So environmental awareness has grown significantly in recent years. People are becoming more conscious of the carbon footprint and the impact of the action on the planet. Many have adopted sustainable practices such as recycling, conserving water and using public transport. Although changes take time, these efforts collectively contribute to a healthier and more sustainable future. मैंने एक बार इस पैराग्राफ को रीड कर लिया, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाती हूँ. So the question is identify the synonym. Synonym means similar word of the word conscious, right? तो कैसे find out करूँ? तो सबसे पहले पैराग्राफ में ये conscious word कहाँ पे use किया गया? Let's go there. So this is the word, right? So people are becoming more conscious of the carbon footprint. तो मुझे लाइन को पढ़ के ही समझ आ रहा है it is thoughtful. Because unaware, ignorant और careless ये तीनों ही इसके synonyms नहीं बनेंगे, antonyms बनेंगे, right? So similar word is thoughtful. That's why this is the correct answer. So this is the tip कि जब भी आप read कर रहे हो sentence को, word find करना है तो उस word की पूरी sentence को आप read करके आपको उसका easily meaning समझ आ जाएगा. Accordingly you can choose from the MCQ. Now the second is the find the grammatical error. अब ये same line इस paragraph में है, right? And what is the grammatical error? हमें ये बताना है. So people are becoming more conscious. Many people has adopted sustainable practices such as recycling, conserving water and using public transport. Many people is plural, but यहाँ पे मैंने has use किया जो कि singular के साथ use होता है. What it means कि यहाँ पे एक error है, इसकी जगह यहाँ पे have आना चाहिए था, right? So this is the error जो कि आपको बताना था. The same thing which I told you. नाउ सेक्शन बी होगा लिसनिंग का. अब इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जस्ट अगर आप डेस्कटॉप पे हो तो वीडियो को बैक कर दो, वीडियो मत देखो. एंड अगर आप फोन देख रहे हो तो फोन को स्वैप करके रखो. आई एम रीडिंग दिस पैराग्राफ फॉर यू एंड देन इन दोनों के आंसर्स आपको जो चैट सेक्शन में बता रहे होंगे. सो लेट्स स्टार्ट. दिस मॉर्निंग आई टॉक टू माय फ्रेंड जेमी. आई टोल्ड हर अबाउट अ न्यू कॉफी शॉप इन टाउन. शी सेड शी saw it yesterday and it looked nice. I saw her. I went there today. The coffee was really good and the workers are very kind. Jamie said she want a new place to study. I said this place has free Wi-Fi and soft chairs. She said she might go there on the weekend. Right. So this is the paragraph. Now, what is the speaker talking about? It's talking about a new coffee shop in the town. So I hope कि आपने comment section में बताया होगा. अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही बताएंगे, मैं यहाँ पे इसका आंसर नहीं दे रही एंड आई विल चेक कि होप कर रही हूँ कि काफी सबने बताया होगा, राइट. सो थर्ड आपके पास जो सेक्शन होगा वो स्पीकिंग का होगा. वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आपके पास जो लिसनिंग का सेक्शन होगा, अब इसमें डाउट रहता है कि क्या मैं इस पैराग्राफ को एक ही बार लिसन कर सकता हूँ, तो नहीं. बेसिकली वहाँ पे कुछ कन्वर्सेशन हो रही होती है 2 पर्सन के बीच में या एक पर्सन कुछ कह रहा होता है. उस कन्वर्सेशन की कुछ लिमिट होती है कि आपको उसको 2 या 3 टाइम्स तक ही दोबारा से
यूज कर सकते हो या लिसन कर सकते हो। तो आपको उसी लिमिट के अंदर ही इसे लिसन करना है एंड अपने आंसर्स का करेक्ट आंसर देना है, राइट। सो थर्ड सेक्शन इज स्पीकिंग। अब स्पीकिंग में क्या होगा, आपको टॉपिक दिया जाएगा, टॉपिक पे आपको 2 मिनट्स के लिए उस पे कुछ भी बोलना होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। सो लेट्स से द टॉपिक इज योर आइडियल वर्क स्पेस। अब इस क्वेश्चन को रीच कैसे करेंगे, कैसे इसको बोलेंगे, तो द अप्रोच विल बी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, दैट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज एन आइडियल वर्क स्पेस, and then talk about personal preference, that why you want this type of ideal workspace, and then why it matters. You can say that you will be staying productive, motivative and grow professionally if you have a good workspace, right? So these are the points you can add. What it means कि कोई भी टॉपिक होगा तो सबसे पहले हम उसको डिफाइन करेंगे एंड देन हम उसमें अपनी प्रेफरेंस क्यों रख रहे हैं उसका रीजन देंगे, एंड लास्ट में जो हमने प्रेफरेंस रखी है वो मैटर क्यों करती है, उसकी क्या एडवांटेजेस है, इस टाइप से, एंड यू कैन जस्ट गिव अ स्मॉल कंक्लूजन। तो 2 मिनट्स के अंदर आपको ये सब कुछ बताना है, राइट। एंड अदर देन दैट कुछ और भी टॉपिक्स हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। द टॉपिक विल बी अ स्किल यू लर्न रिसेंटली। अब अगर आप एक बीटेक स्टूडेंट है तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी बता सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी थी जो मैंने सीखी, दीज आर द चैलेंजेस दैट आई फेस्ड, राइट, एंड इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से मैंने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को या इस प्रोजेक्ट को सॉल्व करा। नाउ दीज आर सम अदर ऑल्सो, तो इन सब की प्रैक्टिस कर लेना। अगर जितने इस पीपीटी में आपको दिख रहे हैं, दिस 1, 2 एंड दीज 4, अगर आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो एग्जाम में आपके पास कोई भी टॉपिक आएगा, यू विल डेफिनेटली स्पीक इन इट, राइट। नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूज अ क्लियर माइक्रोफोन, राइट, एक क्वाइट एनवायरनमेंट में बैठना, स्पीक लाउडली एंड क्लियरली, यूज फुल सेंटेंसेस, अवॉइड करना कि पोजेस ना करो और ग्रामर एकदम करेक्ट रखना, यूज सिंपल एंड करेक्ट इंग्लिश, practice the pronunciation, get used to speaking to a machine। अब ये सबसे important point है, because हम normally speak कर रहे हैं, that is easy, but speaking to a machine is important because यहाँ पे आपको जो टेस्ट होगा वो AI based टेस्ट है, तो आप ऑनलाइन टूल सर्च कर सकते हैं, राइट, जहाँ पे आप प्रैक्टिस दे सकते हैं। It will be good and also manage your time because यहाँ पे 77 क्वेश्चन आए थे अभी previously and you just have 60 minutes। मतलब एक क्वेश्चन के लिए अगर देखा जाए तो आपके पास 1 मिनट भी नहीं है, राइट। सो मेक श्योर कि ये सब चीजों का ध्यान रखना। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आपके पास जो ये वाला सेक्शन होगा दैट इज द स्पीकिंग सेक्शन, इसमें आपके पास कुछ सेंटेंसेस गिवन होंगे। लेट्स से आपके पास स्क्रीन में 10 सेंटेंसेस दिख रहे हैं, राइट। अब इन 10 सेंटेंसेस को आपको स्पीक करना देख के लाउडली, बट अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मशीन कहती है स्पीक तो वो फर्स्ट सेंटेंस भी शुरू कर देते हैं, सेकंड भी, तो नहीं, वहां पे पहले आपको एआई बोलेगा कि फर्स्ट सेंटेंस स्पीक द फर्स्ट सेंटेंस, देन यू हैव टू स्पीक इट, देन सेकंड, देन थर्ड, तो सीरीज में चलना, राइट। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। ऑल्सो अगर आप कॉग्निजेंट की या किसी भी कंपनी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं थ्रू द संकल्प बैच, बिल्कुल न्यू बैचेस है। इसमें कॉग्निजेंट, टीसीएस, विप्रो, हर एक कंपनी का सब कुछ कवर हो जाएगा। एसक्यूएल कंपनी स्पेसिफिक में जाके तो डायरेक्टली आप कॉग्निजेंट का भी डेटा यहाँ से ले सकते हैं। और अगर आप स्पेशली सिर्फ कॉग्निजेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें कम्युनिकेशन वगैरह हर एक असेसमेंट के लिए, तो हियर यू कैन सी आपको कम्युनिकेशन की वीडियोस मिल जाएंगी। एंड देन एप्टीट्यूड है, गेमिफाइड असेसमेंट है, एसक्यूएल है, मॉक टेस्ट है, एंड इसके अलावा इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर करना है और अपना रिज्यूमे कैसे क्रिएट करना है, ये सब कुछ कंटेंट आपको मिल रहा है। तो चेक कर लेना, बहुत ही बेस्ट प्राइजेस में, मिनिमम प्राइजेस में आपको मिल रहा है, राइट। मतलब जितने में आप एक पिज्जा खाते हो उतने में आपको एक कोर्स मिल जाएगा जिससे यू विल गेट अ गुड जॉब। सो चेकआउट कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऑल्सो अगर अच्छा लगा तो प्लीज डू कमेंट, लाइक एंड ऑल्सो चैनल पे न्यू है तो शेयर कर लेना।